hi boys, say hi. Hi boys. Welcome back to WTF was last week जहाँ हम हर हफ्ते पॉप कल्चर में क्या हुआ है वो डिस्कस करते हैं और मोस्टली जो भी हम डिस्कस करते हैं उससे आपकी लाइफ पे जीरो इम्पैक्ट होगा जीरो. सो एनीवे तो न्यू हैरी पॉटर HBO मैक्स सीरीज का टीजर इज आउट एंड ओपिनियंस थोड़े मिक्स्ड हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि वाओ ये तो क्रेजी कास्ट है ब्रो, वाओ नहीं नहीं सॉरी, लोग कह रहे हैं वाओ ये तो क्रेजी कि हमें और डेप्थ में अब मिलेगा देखने को शो. और कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम क्रेजी हो गए हो क्या, ये सेवरस स्नेप Wow, ये तो ब्लैक. crazy हो गए. The thing is, Snape, even for people who had not read the books, Snape redeems himself in the sixth film, the seventh final हाँ. book, final film. Hmm. So everybody now who hated Severus also now likes Severus. I feel like this specifically feels like a racist decision. Like the makers were like, हाँ इसको ये खराब hated बंदा दिखाना ना, इसको black कर दो. Unintentionally racist actually. I feel like intentionally because they were like Severus Snape अब हीरो बन चुका है, अब उसके memes आ रहे हैं always always के वो सब आते रहते हैं उसके reels वगैरह. हाँ हाँ. People love Severus Snape now, but they have to hate him for like 6 seasons before they love him in the seventh. He looks close to the described Harry Potter only. Pretty much. जो cover पे जो drawing होती थी, in fact he looks more like वो book cover पे जो illustration वाला Harry या Potter और होता था. इसका स्कार भी बहुत एक्चुअली एक्चुअल स्कार लाइक अ हम्म. बर्न मार्क दिखाया है इन्होंने इस बार. हाँ हाँ. उस वाले Daniel Radcliffe वाला तो काफी टाइम दिखता भी नहीं था. वो तो ड्रॉन ऑन स्कार होता था. हाँ. और उसके बालों से ही छुप जाता था ना सारे टाइम. हाँ, दिस इज Hagrid, who's also looking chill. I mean, I really Looks like the fine. हाँ. earlier Hagrid, but true to हाँ. the books only. तो वो हाँ. He सीन है. looks fine. हाँ अभी इसका स्कार देख, ये स्कार है ब्रो, इसका स्कार एक्चुअली एक बर्न मार्क की तरह बनाया है इन्होंने. ये रॉन है, ये हरमाइनी है. Ron, Hermione ठीक लगा. Hermione, is she दे हैव नो नो शी just a नॉट. white person or she's mixed race? I think. आई थिंक सो. Not that it matters. डम्बलडोर बहुत सही लग रहा है ब्रो बहुत सही ऑनेस्टली. लग रहा है. Better than the first Dumbledore in the movies. याद है दो Dumbledore थे. आई एक्चुअली लाइक द फर्स्ट डम्बलडोर बट ही द Uh, सेकंड वन वाज टू इंटेंस फॉर. I like the new kid as Harry Potter because he's या not even very like. मतलब he looks like an average kid. या More than जैसे Daniel Radcliffe थोड़ा सा naturally handsome मॉगी सब था. मॉगी बच्चा है वो. हाँ. स्नेप तो ब्रो मतलब एलन रिकमैन had killed it in that role to be honest. This is, oh my, I don't even want to say anything further. This is just a stupid idea उसको race swap करने का. Actually, and the worst choice. Like I would have still worked. A black Hermione would have worked. I feel. Maybe हाँ. Black Ron also could have worked, you know. उसका best friend जिंजर है Black भाई है. वो. और हाँ देख रॉन की लाइफ में है कि वो गरीब है, उसकी फैमिली ऐसे हैंड मी डाउन्स लेके चल रहे हैं. Getting a little racist, but you're right. I mean, But yeah, I so, mean that मतलब हाँ, it narrative would is fit. It would fit. हाँ. Okay. Draco, he looks like an asshole kid. yeah, this Draco was he acted very well though, like this one. Also, अब this one has to ये fuck boy hairstyle वाला बच्चा क्यों बना. ये less fucks वाला लग रहा है. अब original Draco was कि, you know, I took too many fucks वाला actually. हाँ बट वो उसका कैरेक्टर ही वही था कि माय फादर विल हाँ. अबाउट दिस, अब मैं तो जीतूंगा हाँ. क्विडिच, पैसे खिला के टीम में आ जाऊंगा. This kid looks like he doesn't care as much, I think. Yeah, he just seems like a cool boy. तो तुम्हें क्या लग रहा है गाइस, हैरी पॉटर, आर यू एक्साइटेड फॉर द शो या तुम्हें लग रहा है कि मूवीज का नॉस्टैल्जिया रूइन हो जाएगा? आई एम हैप्पी टू जस्ट सी दैट यूनिवर्स रीओपन, बट व्हाट डू यू गाइस थिंक? एवरी सीजन इज गोइंग टू बी फुल बुक. तो एक्चुअली एक बुक को इजीली अगर मैं 1 घंटे का एक एपिसोड हम मान के चले तो 10 hours ऑफ कंटेंट पर बुक इज व्हाट विल बी एबल टू 8 to 10 hours ऑफ कंटेंट व्हिच इज गोइंग टू बी क्रेजी. बाकी देखते हैं एज द सीरीज प्रोग्रेसेस, एवरी सीजन दे हैव न्यू कैरेक्टर्स, लुपिन आएंगे, सीरीज ब्लैक आएगा आगे जाके. कब आ रही है सीरीज? Be December. Oh, Christmas, which is what Harry Potter movies were actually Christmas movies. In a sense. Christmas marathon is a popular thing because Harry Potter movie, all the movies have the whole. All the year movies and they have the a Christmas scene, right? Yeah. ऋतिक रोशन ने एक साथ में एक प्रमोशनल वीडियो निकाला है where ऋतिक is like we are alien friends only. alien friends. We are both friends of aliens. दूसरे के नहीं. हम दोनों अलग अलग aliens के दोस्त हैं. हम एक दूसरे के दोस्त नहीं है. ये दोनों भी what the fuck was alien friendship? हाँ मतलब ये कुछ तो actually recap ही कर रहे हैं बैठ के. जिस तरीके से बैठे हुए हैं. There's just a conversation between these two guys, but it's cool that we got these like. इन्होंने एक छोटा सा वो पकड़ लिया कि अरे हाँ यार, ऋतिक हमारे में भी तो एक मूवी है जिसमें एक बंदा एलियन का दोस्त बनता है. हाँ. पूरा पैसा पूरा उन्होंने उठा के सारा मार्केटिंग पैसा उस एक फैक्ट में डाल दिया, एक कनेक्शन में कि ओ हाँ हमारे पास भी एक एलियन वाला है. Yeah, but कोई मिल गया was a big enough film for them to leverage it. कि जिसने कोई मिल गया देखी है वो देख सकता है. What's so weird ना using a film to promote another film, जिन दोनों के स्टूडियोज वगैरह कुछ भी फिर तो ब्रो मतलब तू सोचना कितनी मैसिव होगी कोई मिल गया फॉर अ
global studio for a film this big. Project Hail Mary is huge for the production house also. हाँ, I think इस साल की सबसे बड़ी मूवीज में से तो है ये easily. Yeah, मतलब Doomsday, Doom और ये सब भी है अभी आगे, but Odyssey, actually it's a big year. it's actually a huge year. So it's one of the bigger films to get. Even then, हाँ. मतलब टॉप 10 मूवीज में तो है इस साल की फॉर श्योर. हाँ. और उसमें उनको पास उसमें कोई मिल गया, इतना बड़ा फिनोमेना थी. अजादू और कृतिक का इतना बड़ा फिनोमेना है कि इन्होंने उसको इंडिया का पूरा मार्केटिंग बजट उसमें डाला हुआ है. Actually, पूरा इंडिया का is just on this one fact. Imagine explaining it to like the US team कि हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, ऋतिक रोशन के साथ वीडियो कर रहे हैं. अच्छा हाँ, और नहीं 6 वीडियो ऋतिक रोशन के साथ करें. क्यों? उसकी 6 उंगली है ना. तो हर उंगली के लिए एक वीडियो. वो हर एक से अरे बट इसका हर एक उंगली से वीडियो, एक वीडियो को वो अपलोड. लाइक उसने भी एक एलियन फिल्म करी है. हाँ तो एलियन फिल्म तो बहुत सारे अच्छा, रिसेंटली नहीं 20 साल पहले, सॉरी 24 साल पहले करी थी एक्चुअली उसने जिसमें एलियन था. उसके बाद भी थी वो फ्रैंचाइज तो 10-15 साल पहले तक चल रही थी, पर एलियन एक ही में था. उस एलियन को एक स्पिन ऑफ टीवी शो भी दिया था निकलोडियन पे. वो एलियन वो उसके ऊपर करेंगे. वहां पे वो कह रहे क्या बोल रहा है, what is this om that you're talking about? Sorry, om he's talking about. What is this jadoo that he's talking about? What is this koi mil gaya? What is this धूप that he's talking about? Actually वो भी connection है, cause don't spoil it. Okay, ठीक है. But हाँ मतलब प्रोजेक्ट हेल मेरी guys definitely must watch film है यार. Please जाके देखो. Stunning film. 3-4 बार मेरे को रोना आ गया, आंसू आ गए थे मूवी देख के. In a good way. Like वो moments, emotional moments भी हैं, comedy भी है, drama भी है. एक्शन तो नहीं है मूवी में, स्पेस है तो एक्शन नहीं है मूवी में, तो फिर आईमैक्स में क्यों देखने जा रहा हूं मैं कल. ब्रो स्टनिंग विजुअल्स ना. द स्पेस ओडिसी इज विजुअली गुड टू लुक. एक्चुअली उसमें मोमेंट्स हैं, 3 या 4 मोमेंट ही होंगे जहाँ पे यू विल इमीडिएटली थिंक कि गुड थिंग कि आईमैक्स में देखा. मैं 3-4 मोमेंट्स ऐसा था कि ये अगर आईमैक्स में देखा होता तो, बट विदाउट दैट आल्सो आई हैड अ ग्रेट, आई रियली एंजॉयड इट. सम मोमेंट्स तो वेरी गुड. नहीं आई एम एक्साइटेड. मैं मतलब काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ. आई वाज सपोज्ड टू गो यस्टरडे, बट सारे के सारे आईमैक्सेस, तुझे तो पता ही होगा धुरंधर 2 की वजह से बहुत ज्यादा. बट इट्स गेटिंग बिकॉज़ द शोज आई सॉ 9 AM शो देखा मैंने आज सुबह, और वो भी 50% ऑक्यूपाइड था. दे आर रैंडमली अनाउंसिंग शोज एवरी डे एंड दे आर ऑल गेटिंग बुक्ड आउट एज सून एज दे आर गेटिंग अनाउंस्ड. तो वेरी स्ट्रेंज सक्सेस दैट दिस मूवी इज गेटिंग. इट विल, आई थिंक इट विल पिक अप. तो जम्मू में सिडान कह रहा लगी नहीं, बट लग जाएगी ब्रो. जिस तरह से उसका वो चल रहा है ना, इट्स क्वाइट लाइकली कि अभी तो बिग सिटीज में लगनी शुरू हुई है और सोल्ड आउट होनी शुरू हुई है. बट दिन के 2-3 दिन का पहले 2 शोज थे, अब मैंने आज देखा 3 या 4 शोज हो गए सेम थिएटर. सो दे आर गिविंग स्क्रीन्स टू इट. और धुरंधर का हाइप जैसे डाई डाउन होगा तो फिर हो तो रहा है. सबने देख ही ली ना पिछले 2 हफ्ते के अंदर ही. हाँ मोस्टली जिसने भी देखनी थी. आई मीन सो या दैट वाज द प्रोजेक्ट हेल मेरी अच्छी मूवी है. रायन गॉसलिंग ऋतिक रोशन को मिल्क कर रहा है. वेल दैट केम आउट रॉन्ग. जादू को मिल्क कर रहा है. जादू को मिल्क कर रहे हैं. आई मीन they're just milking bro the whatever the franchise. Yeah. You know about the Mumbai musical road जो जय हो बजाते हुए. अच्छा जय हो बजाता. I thought कि कोई हाँ patriotic सा ही गाना होगा. जय हो पेट्रियोटिक गाना ही मानते हैं हमारे देश में. हाँ मतलब I remembered it was one of those. पहले मुझे लगा माँ तुझे सलाम या वंदे मातरम या कुछ है. That would have been cool, but same song. बट क्या हुआ कि वो ब्रो जब वो आया था म्यूजिकल रोड, तो मैंने एक रील डाली थी वेयर आई पुट आउट सेइंग कि म्यूजिकल रोड की किसी को ज़रूरत नहीं थी, क्यों बनाया है. नॉइज़ कंप्लेंट आ रही है लोगों की, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. द रोड केम आउट इन फरवरी, इनिशियल बिगिनिंग ऑफ फरवरी, और 2-3 दिन पहले उसको ब्लॉक कर दिया है कि नाउ इट इज़ दैट सेगमेंट ऑफ द रोड कैन ओनली, विच इज़ अ हाईवे, इट इज़ अ फुल फ्लेज्ड हाईवे का पूरा लेन, दैट होल लेन इज़ नाउ ब्लॉक्ड ऑफ विद बैरिकेड्स. क्योंकि अब इतनी नॉइस कंप्लेंट्स आ गई आसपास लोगों से कि सारा दिन टेंटेन बजता रहता है कि उन्हें बैरिकेड करना पड़ गया. नाउ देयर लाइक इट्स ओनली फॉर स्पेशल ओकेजन्स नाउ. I am surprised because I didn't know कि इतनी दूर तक आवाज जाती है. It's just some bumps on the road. तो I thought तुम्हें सिर्फ अपने कार की वाइब्रेशन से सुनाई देता होगा, but नहीं, it makes that much noise. It makes noise enough to. वो grooves बनाए जिसके थ्रू हवा निकलती है तो आवाज आती है. हाँ I know. बांसुरी है फैंसी. Yeah, true. It's a wind instrument, true, एक तरह का. कूल है, बट
गलत जगह बना दिया, अननेसेसरी बना दिया, और अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये पैसे से कहीं और बाकी मुंबई में सड़कें टूटी पड़ी है वो बना दो। हाँ, इट कुड हैव जस्ट बीन कि जब तुम हाईवे से मुंबई एंटर कर रहे हो तब वो गाना बजता है समथिंग यू नो। हाँ कि थोड़ा ये दूर तो का मुंबई कुछ। में ही जाके नहीं बज सकता था। No, what the point of this whole thing was. There was nobody asked for it, nobody needed it. Cool है तो बना देंगे। किसी को लगा कि भाई ये तो जापान गया कोई अपना यहाँ से कोई बंदा, they were like वाह यार ये जापान में तो बढ़िया है, गाड़ी सड़क पे म्यूजिक भाई हम भी लगाएंगे इंडिया में। इंडिया आके उसे सैंक्शन कर दिया 6-7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना के, वाह। सेक्सी लग रहा था। हाँ बस, हाँ सेक्सी लग रहा था लॉजिक। एनीवेज तो यार नाउ म्यूजिकल रोड बंद हो चुकी है, बैरिकेड हो चुकी है, नाउ इट्स ओनली फॉर स्पेशल इवेंट्स। प्रियंका चोपड़ा के साथ जो हुआ है, हाँ इट्स एक्चुअली नॉट इंटरेस्टिंग। वही बॉलीवुड में भी, अच्छा ये अभी बिकॉज यू टॉक अबाउट हैना पॉप स्टार सब, सो क्या हुआ कि देयर वाज सम इवेंट, बिग इवेंट ना, बिकॉज यू हैड के पॉप स्टार्स देयर, यू हैड जेक गिलेनहॉल, यू हैड दुआ लिपा, यू हैड प्रियंका चोपड़ा देयर, सो ह्यूज इवेंट। एंड वहाँ पे एवरीबडी वाज लाइक ओ प्रियंका चोपड़ा हैज बीन स्नब्ड बाय दुआ लिपा बिकॉज शी वाज ट्राइंग टू क्लिक अ फोटो विद हर। इसका कुछ वीडियो भी आई थिंक, या स्नैप्ड का क्या मतलब होता है? कि उसने उसको भाव नहीं दिया। अच्छा, इग्नोर्ड, ओके। So this is, she's trying to talk to her, and then this clip was taken where Dua Lipa is not, she's saying something, she's looking at it, but Dua Lipa is focused on the photo and whatever, she's doing her own thing, right? So somebody put out some story, and then Instagram पे बहुत लोगों ने भर दिया, पैप पेजेस ने भर दिया कि प्रियंका embarrassing Chopra is getting the treatment she deserves by Hollywood artists. Embarrassing Chopra. Treatment she deserves, bro, straight up. No shit, yeah, she does not like. Dua Lipa literally ignored and pushed her away like a random influencer. पोस्टर तो And नहीं हो then गया, सब कुछ भी respect नहीं हो for रहा Dua है। Lipa. भाई, अब दुआ लिपा was probably drunk or high in this clip. Bro, उसको I नहीं think she ध्यान was हो रहा just होगा focusing आसपास on the क्या हो रहा है। camera. क्योंकि उसके बाद there was a long ass video of them having a chat side में, stage था वहाँ पे, हाँ, stage हाँ। के साइड में बुल्गारी का कोई event है, right? बुल्गारी। But also look at this stunning lineup। हाँ पहले तो first thing I want to call out that our girl Priyanka, she's come from बरेली। वो बरेली से निकल के, जो भी मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता, probably होगी influential family, होगी नहीं होगी, I don't know. Girl has gone all the way up to Hollywood from India. इंडिया में टॉप टीयर एक्ट्रेस बन के वहाँ पहुंची है, and look at the room she's in, bro. She is standing next to Dua Lipa, who is standing next to Jake Gyllenhaal, who is one of the most prolific actors of our time, who is standing next to Blackpink के K-pop superstar, who is huge in the world, who is standing next to Anne Hathaway. So this group is Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal. This covers Hollywood biggies. This covers Global music musicians दो। हाँ वो भी एशियन एंड वेस्टर्न दोनों। represent for India is right there, Yeah. प्रियंका चोपड़ा। अब इसमें somebody like ओहो इसको इग्नोर कर दिया। भाई अगर इग्नोर भी कर दो मुझे इस रूम में 4-5 लोगों के बीच में, you are still top 5। अब top बाकी 5 पूरी दुनिया ने इग्नोर नहीं किया ना, everyone else still saw this, कि Exactly. she is there. And I can't believe जो ऊपर मैं कैप्शन पढ़ रहा हूँ, respect for Dua Lipa for showing this home wrecker her real place who did PR for being sidelined against क्या? their sideline against Bollywood। बहुत सिर्फ बॉलीवुड वर्ड पढ़ने के लिए हमने पूरा हमने पूरा पूरा पेज खोला है। But yeah, But this is what the narrative was, and then somebody called it out because then somebody put up full pictures and videos of them having a full-on interaction. Dua and Priyanka are having a time of their lives with each other. वो पूरे वीडियोस हैं उसके, और उस बंदे ने डाला है, एंड देन दिस पर्सन हैज कॉल्ड आउट द पैप पेजेस, एंड ये रिस्पॉन्स बहुत क्रेजी है। अगर कोई इंडियन बाहर जाके सक्सेसफुल हो जाए, ये उसने वीडियो में बोला है विद व्हाइल शोइंग दिस थिंग इन द बैकग्राउंड, क्रैब बकेट मेंटालिटी की बात करने वाला हूँ। हाँ अगर कोई इंडियन बाहर जाके सक्सेसफुल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उसको सपोर्ट नहीं, उससे उसकी औकात याद दिलाओ कि वो एक इंडियन है। ऐसे कैसे वो बाहर जाके हॉलीवुड लोगों के साथ खड़ी हो सकती है? ये इंडिया के पेपराजी के पेजेस प्रियंका चोपड़ा की फोटोज और वीडियो फ्री में यूज करके पहले तो व्यूज छापते हैं और फिर ऐसे कमेंट्स लोड करते हैं कि शी इज इररिलेवेंट इन दैट क्राउड। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। 5 being the last one of that crowd would also bring it, but I don't think she is the last one. Then this person has gone to saying, "Beta, you are irrelevant. आप शायद फोटो भी ना खिंचा पाओ। She is someone who is loved worldwide, and the only hate she gets is unfortunately from Indians. Not sure कि क्यों है ये mentality. हम समझते हैं कि हम लोगों की औकात ही नहीं है। हाँ हम समझते हैं कि हम लोगों की औकात ही नहीं है बाहर के लोगों के साथ खड़े होने की, compete करने की, जबकि वो लोग मान रहे हैं बराबर का, हम नहीं मान रहे बराबर का। It's very unfortunate. पता नहीं क्यों करते हैं, मिलियन व्यूज इसके नाम से फ्री में लेते हैं और इसको ही बदनाम करते हैं। जहर लोग हो यार, हो सकता है, सी वी डोंट नो व्हाट शी इज एज अ पर्सन, राइट? बट वही मैं कह रहा हूँ, इफ यू वांट अ हेटर तो कुछ आई थिंक रीजनिंग, हाँ कॉन्क्रीट रीजनिंग निकालो। डिड यू वॉच द मोआना लाइव एक्शन बाय द वे?
मैं I saw the pictures of the teaser. The Rock बहुत stupid लग रहा भाई द रॉक तो बहुत ही फनी लग रहा है है. ब्रो, दिस इज द रॉक। अगर मैं आपका फार्म बिल पे कर दूं तो टाइप का एक्सप्रेशन है ब्रो। He's not even doing the, वो जो eyebrow raising वाला The हाँ, Rock का वो वो जो है. I know he wants to smoothing, do it. उसकी शक्ल पे दिख रहा है यहाँ भाई पे. we can just merge two news items here because Jumanji 3 भी आ रही है। See, but the thing is he's not looking bad to be honest, just that we're so used to him being bald that ये खराब नहीं लग रहे हैं उसके बाद। He kind of looks nice, I guess. Yeah, वो he बस looks थोड़ा सा good. less masculine लग रहा है, and The Rock के लिए that's just not working. Yeah, he needs that rocky energy, but I just feel maybe a more The chubbier stone. guy, less muscular would have worked better for this. The other controversy related to hair is मोआना के बाल कर्ली है naturally, ठीक है. और जो Oh, live action में बंदी है उसके भी बाल naturally curvy हैं. But for shooting, oh they've yeah, straightened her hair. this is a normal hair, and this is her hair in the show. They straightened her hair. तो कह रहे कि हेयर एंड मेकअप टीम, हेयर टीम वाज लाइक हम अपने पैसे पूरे हाँ, कुछ जस्टिफाई करना तो करके है जाएंगे। यार. Shit, इसके बाल पहले से कर लिया, अब हम क्या करेंगे? उसके कर्ली बाल निकाल के रॉक के सर पे लगा दिए और उसके सीधे कर दिए। लाइक हमें कुछ तो उसके बाद स्ट्रेट करके वापस सोच कर्ल कर लेते हैं सोचो, हम. लड़की को गंजा किया ताकि उसके बाल निकाल के कर्ली वाले रॉक का विग बना सके, और उसके सर पे दूसरा विग लगाया हुआ है। बट या व्हाई डिड दे डू दिस? इनको हर बार कुछ ना कुछ तो गलत कुछ करना ही है ना लाइव एक्शन में. इनको कंट्रोवर्सी कुछ, ब्रो, हाँ. कंट्रोवर्सी से मूवी की वो मार्केटिंग तो फ्री हो जाती है ना, सबको पता है कि मोआना आ रही है, बट ये It was बैकफायर so होता है कि dumb. चलती नहीं है मूवी कई बार। So dumb. I don't know. She had curly hair. The character has curly hair. मतलब it's a no-brainer. So Tiger Woods has another DUI. This can't be his first, right? दिस वाजंट ब्रो, उसका पहला DUI बहुत मेजर था। हाँ. फ्लोरिडा में क्रैश हो गई उसकी गाड़ी ब्रो। उसका एक तो पूरा ऐसे चल रहा है ना. उसका बहुत लाइफ has been going थोड़ा वो strange for a few years. हाँ, आई थिंक एवरीबडी वाज लाइक ही चीटेड ऑन हिज वाइफ एट वन पॉइंट, हाँ हाँ हाँ, वो तो एंड सबको देन पता है. सो बेसिकली उसने क्या किया, ही वाज अरेस्टेड आफ्टर अ क्रैश फॉर सस्पिशन ऑफ ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, एक्चुअली ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। तो उसने ब्रेथलाइजर टेस्ट पास कर लिया बट यूरिन सैंपल देने से मना कर दिया। तो ऑफिसर्स को लग रहा है कि उसने कुछ तो ड्रग्स ले रखे थे। फिर वो वापस आया तो अब लोग कह रहे हैं कि उसकी वाइफ वाज नॉट वेरी हैप्पी, जो उसकी अब आई थिंक सेकंड वाइफ है, एंड काफ़ी कलेश हो गया उसके बाद। Yeah, I know. आई गेस टाइगर वुड्स की गेम्स अब थोड़ी कम बिकेंगी। टाइगर श्रॉफ का थोड़ा सा अभी he's off his game in life. टाइगर वुड्स ब्रो, टाइगर श्रॉफ तो अलग है। Sorry, टाइगर वुड्स. तो ये टाइगर क्यों नाम रखते हैं अपने बच्चों का? That's such a weird name. गाइज, आई बिलीव इन बॉडी पॉजिटिविटी एंड दैट्स व्हाई आई एम्ब्रेस माई बॉडी। लेकिन अगर मैं सडनली मोटे से पतला होते हुए दिख जाऊं तो समझ जाना कि ओजेम्पिक इंडिया में सस्ते में आ गया है। ओजेम्पिक का द मेजर अपडेट इन इंडिया इज दैट ओजेम्पिक यूज्ड टू बी इट वाज Expensive drug. पेटेंटेड, और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पे कुछ 20 साल का पेटेंट आप कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट इट एक्सपायर्स। ऑलरेडी मोंजारो करके वो दूसरी कंपनीज ने कुछ एक वेरिएंट निकाल रखा था इसका, बट अब द ओजेम्पिक का ऑफिशियल पेटेंट इज ओवर, और इंडियन कंपनीज ने पेल के अपने अपने वेरिएंट निकाल दिए सेम ड्रग के। तो अब बहुत इट इज सस्ते में. इंसेनली चीप, मतलब इट्स चीपर देन अ जिम मेंबरशिप। इफ़ यू वांट टू लूज वेट, इफ़ यू जॉइन जिम, ढंग का जिम मंथली मेंबरशिप ज्वाइन करोगे, उससे मंथली में आपका रेट सस्ता पड़ रहा है ओजेम्पिक यूज़ करने का। तो a lot of people are going to hop onto it, a lot of kids, teens are going to hop onto it because weight is a sensitive topic. तो स्ट्रेस की बात यह है कि पहले आप मोटे थे, शायद अनहेल्दी नहीं, पर हो सकता है कि ओजेम्पिक लेके लोग मोटे से पतले हो जाए पर अनहेल्दी हो जाए, बिकॉज इट्स अपेरेंटली यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर डाइट एंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल यू आर ऑन इट। What does it do? How does it make people thin? इट बेसिकली स्टार्व्स यू इन एसेंस। वो तुम्हारी बॉडी को ये बता देता है कि तुम्हें भूख ही नहीं लग रही है, तुमने खा लिया, तुम्हारा ग्लूकोज लेवल बैलेंस आउट करके। इट्स अ डायबिटिक ड्रग एक्चुअली। तो you're starving yourself in there. मुझे लगा था वो फैट सेल्स को टारगेट करता था या कुछ. नहीं नहीं ना. ये बेसिकली GLP-1 करके एक नेचुरल गट हार्मोन है जो आपका एपेटाइट और ब्लड शुगर सॉर्ट करता है। अगर GLP-1, व्हाट दिस डज इज इट एक्ट्स ऑन GLP-1 रिसेप्टर्स इन द ब्रेन ताकि आपको भूख ही नहीं लगे, यू जस्ट डोंट फील हंग्री सो यू वोंट ईट,
और ये आपका इंसुलिन लेवल भी बढ़ा देता है। हाँ, ये मेरे को पता था कि कुछ इसका डायबिटीज से थोड़ा सा लूज कनेक्शन भी है ना। करेक्ट, डायबिटीज़ में आप इंसुलिन नहीं निकाल पा रहे हो तो ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर बढ़ जाती है और इंसुलिन मैनेज नहीं कर पाता उसको, तो यू एक्चुअली यू इंजेक्ट नीड इंसुलिन। इंसुलिन, हाँ। तो ये क्या करता है, ये GLP-1 से आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स बढ़ा देता है, ज़्यादा इंसुलिन निकल जाता है। दैट जस्ट बेसिकली विच इज़ नॉट गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ नहीं, इट्स अ चीट वे टू, तुम हेल्दी नहीं हो रहे हो, तुम पतले हो रहे हो हाँ लिटरली करेक्ट, इन एन अनहेल्दी वे। कल इंटरनली एक तो तुम्हारे रिसेप्टर्स पे इम्पैक्ट कर रहा है ये, ब्रेन पे, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा तुम्हारा इंसुलिन लेवल, एनीवे इट्स अ सेंसिटिव थिंग, तुम्हारा इंसुलिन लेवल मैनेज कर रहा है तो इट माइट लीड टू अदर प्रॉब्लम्स, एंड इट डज लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अ लॉट ऑफ पीपल डिड फेस इश्यूज ऑन ओजेम्पिक ऑल्सो, तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं भाई। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, सीरियस किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को हुए भी हैं, पैनक्रियाटाइटिस एंड थायराइड ट्यूमर्स। आई एम श्योर एवरीबॉडी न्यू कि अगर तुम जल्दी से पतले हो रहे हो ड्रग लेके तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स होंगे कुछ बट तो। पीपल डोंट केयर। हाँ एग्जैक्टली, मतलब इट्स समथिंग यू एक्सेप्ट। यार काफ़ी लोग मेहनत करके जेन्युइनली वेट नहीं लूज़ कर पाते, कि हाँ। डाइट भी कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे, उनकी जस्ट बॉडी जेनेटिकली प्रोग्राम नहीं है टू लूज वेट। तुम कितनी भी इंजीनियरिंग कर लो, कितना भी साइंस लगा दो, नहीं हो पाता बहुत लोगों से, और नहीं उनका रूटीन नहीं अलाउ करता। आई फील लाइक एवरीबडी हैज़ द राइट टू चूज देयर बॉडी टाइप, देन आई ऑल्सो बिलीव कि भाई तमीज़ से करो फिर। लाइक आई एम ओके यू टेक ओजेम्पिक, बट यू नो द साइड इफेक्ट्स एंड हाँ, टेक द रिस्क। एंड आई मेरे थिंक एक पीपल भी हैव, दोस्त को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। देयर आर फ्रेंड्स दैट आई हैव इन द इंडस्ट्री हु वांट टू टेक ओजेम्पिक। आई हैव टोल्ड देम मेरे साथ जिम आ जा भाई, मैं डाइट चार्ट बना देता हूँ, मेरे साथ बैठ के मैं आई टेल यू व्हाट टू डू, जस्ट फॉलो इट। बट ओजेम्पिक का रिस्क आप क्यों ले रहे हो अननेसेसरीली? इट्स नॉट अ नेसेसिटी फॉर यू टू डू इट, यू जस्ट बीइंग लेजी। yeah, you're just being lazy and then you should be okay with, if you want to be lazy you should be okay with the risks जो Yeah. काफी उसके हैं। करेक्ट, बट आई फील लाइक लेजीनेस ओवरकम करना इज जस्ट सिंपलर देन टेकिंग दिस बिग रिस्क। यू डोंट नो हाउ योर बॉडी विल रिएक्ट टू इट। Yeah, it is a very big risk, मतलब I तो find it quite dangerous। मैं ऑस्कर रन कर रहा था, तो ऑस्कर वाली मूवीज में एक थी इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू, व्हिच इज अबाउट, इट्स उसमें रोज बर्न है, दैट ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस, शी इज लाइक अ थेरेपिस्ट एंड आई हैव हर्ड शी हैज अ डॉटर एंड उसकी डॉटर को एक सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है एंड हर हस्बैंड इज नॉट अवेलेबल, ही इज अ नेवी मर्चेंट होता है वो, सॉरी मर्चेंट नेवी में काम करता है। So there's a lot of stuff. Her life sucks basically, and she's not good at dealing with her life. उसके ऊपर से she's a therapist to other people. So it's quite interesting overall. I don't want to give away too much about it, but A24 की movie है, and they're pretty good at these movies where you know one person is really not fitting in and has to and कि उनकी life बहुत ज़्यादा mess up हो जाती है. It's one of those movies. So if I had legs I would kick you. Conan O'Brien is also in the movie. A$AP Rocky is also in the movie. Damn. Good casting. Acted pretty well. I think she could have got Best Actress. Oh, She could have, but Hamnet वाली को मिल गया। damn it. कुछ share हो रहा है, ठीक है। So guys, this movie. Our desi recommendation for movie was if I had legs I would kick you. If तो I क्या had legs, I would genre क्या हुआ है? Is it like a black comedy or? हाँ, you can call it a black comedy. It's more sad than it is funny, but it is a black comedy, dark comedy vibes also. Nice. मेरे पास इस हफ्ते मूवी नहीं है। आई एक्चुअली हैव अ शो। प्रोजेक्ट हेल मेरी देखी मैंने, बट मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो मतलब जनरली देखो। इट्स जस्ट ऑन ऑब्वियस रिकमेंडेशन। When you say मैं recommend नहीं करूँगा, it नहीं, I sounds mean like I recommend that you go watch it, but that's not my desi recommendation. You obviously should go watch it. It's a great film, genuinely good film. थिएटर में देखनी है तो प्रोजेक्ट हिल मेरी देखो। That's मतलब hype is, it lives up to the hype. I went in with expectations, जो बड़ा unusual होता है। मैं generally ignore करता हूँ कि लोग इतना बोल रहे हैं तो छोड़ो, but it lived up to whatever expectations I had. मैं ये सोच के भी गया था कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइप तो नहीं होगी, बट नहीं निकली वैसी। आई genuinely liked it, genuinely a good fun movie. Actual recommendation is another space related thing which is called Space Force. It's a show on Netflix created by and starring Steve Carell. Steve Carell is the guy who was the Office का हाँ, Michael Scott. yeah, Michael Scott, boss in the Office. उसने बहुत सारी movies और भी करी हैं obviously, but I feel like he's brilliant at comedy, but he does it always with a straight face. Like he does his comedy very seriously, and genuinely I really enjoy. Space Force में क्या होता है? Basically he's an Air Force general
उसको उठा के बोलते हैं कि अब आपको प्रमोट कर दिया गया है और अब आपको एक रिमोट से छोटे से शहर में स्पेस फोर्स का हेड बना दिया गया है. इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू एयरफोर्स जनरल, वी आर गोइंग टू मेक यू स्पेस फोर्स जनरल. So they, apart from army, navy, and air force, they add a fourth force, which is space force, which जिसका पूरा space mission is their objective. कि moon पे जाओ, Mars पे जाओ, ये सब figure करो. And then how every day this non-scientist guy has to deal with scientists with his air force thing कि हर चीज़ को bomb कर दो, मार दो, फोड़ दो, and he has to deal with real people, real situations. Genuinely good. It also has this guy, very popular actor यार. Ian Malkovich. हाँ. और वो भी तो है Jin Yang from Carl Penn भी है इसमें. Actually, Carl Penn. Ben Schwartz is in this. Ben Schwartz is Sonic the Hedgehog का voice actor. It is actually a W cast, to be very honest. Steve John Malkovich, I mean. Oh, Fred Willard है इसमें before he died. Genuinely fun and funny show. काफी bingeable, काफी मतलब bingeable as in you can keep watching it also, you can watch it in one go also, or you can also choose to just आज 2 दिन में एक एपिसोड देख लिया, आज कुछ और देख रहा था, वो वाइब नहीं, कुछ लाइट देखना है, लाइट वॉच है. My recommendation was if I had legs I'd kick you. तेरा है is Space Force. यहाँ पास में एक वो पॉपअप टाइप था, मार्केट टाइप का, एंड हमारी एक one of my friends उसकी mother runs an NGO startup टाइप का. So what they do is ये हिमाचल में there are these women. I don't know what the deal is with the women, but they in their free time. Are they single? Are they divorced? Actually, I think they are, because I think it's mostly like widows and stuff like that. Women who have some free time and want to do this, so they have this company called the Mustard Women. The Mustard Women. Can we have thoda info up? Likha, we are a women-owned collaborative driven by Himachali women who strive to support, empower, and nourish their community. Our recipes are rooted in the rich Himachal tradition, and our premium ingredients are sourced from Himachal. So each jar is bottled and packaged by women in our village, so it's a very women-run, women-focused startup and Himachali-focused also. मैं भी Himachali हूँ, so that's why I really support this. So the Mustard Women. Such cool names, bro. Mastani Mooli. Adrangi Adrak. This one is obviously Nutcut Nimbu, pretty standard. A little homophobic there with meaty mirch, but we take it with the rest. We take it with a pinch of achar. So achar और चटनियाँ हैं mostly, and it's really really good. I have the lemon one. मैं mostly lemon pickle लेता हूँ, nutcut नींबू, and yeah, it's pretty good. My recommendation is actually a book. हाँ, so because मैं acting करता हूँ, well, I feel like constantly लोगों को बताना पड़ रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी कर नहीं रहा हूँ clearly. So मैं एक्टिंग करता हूँ, तो in the theatre and film circuit there is a very popular play, क्योंकि plays पढ़ने का काफ़ी वो होता है रूटीन, जो मैं नहीं करता हूँ very honestly. देखो मैं बहुत ये सब चीज़ें मेहनत वाली करता नहीं हूँ मैं. But I had heard of this book called Death of a Salesman. It's actually a play which is extremely popular apparently in the theatre and film circuit. सबने पढ़ा है, सब देखा है. मैं कुछ दिन पहले चंडीगढ़ जा रहा था एक शूट के लिए, और रास्ते में मुझे एयरपोर्ट पे बुक दिख गई. मैंने कहा यार ये बुक जनरली कहीं मिलती नहीं है, सामने ले लेता हूँ, फ्लाइट में पढ़ लूँगा. It was so difficult to put this book down. One of the best plots, one of the best plays I've read. अगर आप प्ले नहीं भी पढ़ते हो, ये प्ले नहीं है, स्टोरी बुक है, एंड इट्स सो ईजी टू रीड बिकॉज एक्चुअली पूरी चीज़ डायलॉग्स में लिखी है. इट इज़ लाइक स्कूल में जो सीजर के चैप्टर होते हैं ना प्ले वाले, जहाँ बस पेजेस ज़्यादा लगते थे बट एक्चुअली 6-7 लाइनें ही होती थी. तो उनकी लाइफ में भी क्या स्ट्रगल है टू लिव अप टू व्हाट दिस डैड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम देम. Genuinely very good for anybody in a corporate situation, anybody who has 50-55-year-old plus parents जो रिटायरमेंट देख रहे होंगे, और आपको भी दिख रहा होगा मेरे पेरेंट्स की एज हो रही है एंड आई नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, बट यू नो समटाइम्स लाइफ डजंट लेट यू. सो generally good book, Death of a Salesman. देखो प्लीज़ पढ़ो. Alright guys, that was the recap. Already laptop lag होने लग गया है क्योंकि बैटरी अनप्लग कर दी गई है. So say bye boys, say bye.